Welcome to Gyan Jyoti online classes. Today we discuss the remaining portion of the part 2 of 15th chapter of your class 7 science. Okay, so we continue the discussion of light. Okay, the chapter light, which is 15th chapter of your book. Before this video, we have already discussed about the ray and the images and what type of images are formed in the plane mirror. Okay, so we have discussed up to the image formed by a plane mirror and the uses of the plane mirror also. Okay, so today we discuss about spherical mirror. Okay, so this is a plane. Okay, so in our home we use the plane mirrors. Okay, what will be inside? What are the inside the plane mirror? Okay, there is a quotation of the behind a quotation of the silver metal will be done in cases of the plane mirror. Okay, but today we will discuss about the spherical mirror. So what is a mirror? Mirror is a better reflecting surface which is mainly made up of glass. Okay, simple. The mirror is a reflecting surface which is mainly made up of glass. Okay, so those mirrors which are plane, they are called the plane mirror, and the mirror which are in spherical shape are called the spherical mirrors. Okay, so I have taken two sphere. Okay, I have taken two sphere. To convert a glass into a mirror is to coated the back side with the help of silver metal. Okay, now this is your circle with the sphere A or sphere B. In this case, in sphere A, I have coated it from upper side. Okay, so I make a quotation of silver metal with its back side. Okay, so this becomes the opaque side of this spherical surface. Okay, and I have coated inside of this spherical surface, just like here. I have coated a silver metal at the back side or the inside of this sphere. Okay, so this is the opaque surface. Okay, so suppose if I want to erase this portion, okay, if I erase this portion, then this type of structure will be obtained. And if I want to erase this portion, okay, so here I have obtained two types of mirror. In this mirror, this becomes the reflecting surface and this becomes the reflecting surface of the. Okay, here this is your reflecting surface and this is the here this is the shadow part, so this becomes the reflecting. अंडरस्टूड? तो मैंने इसमें क्या किया, दो सर्कल जैसा पार्ट लिए, फिर इसका बाहर साइड में जो सिल्वर मेटल उसको कोट कर दिया, इसका अंदर साइड में कर दिया, तो ये जो बन गया, ये जो पोर्शन बन गया, ये उसका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इसका जो अंदर वाला पार्ट हो गया, ये हो गया उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो देखो यहाँ पे दो तरीके के मिरर बने, एक का अंदर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक का बाहर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. और मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर घुसा हुआ है. ओके, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एकदम से ओके. तो इसको हम अपनी हैंड के सहायता, ये जो प्लेन मिरर है एकदम प्लेन था, फिर यहाँ पे जो आ गया एकदम से इस तरह का कर्व बन गया. इसका जो मान लो ये जो मेरा फर्स्ट पोर्शन है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ओके, और जो बैक साइड है इस पर सिल्वर कोटेड किया गया. तो मान लो प्लेन मिरर जो था, इधर कोई लाइट आएगा टकराएगा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये तो प्लेन मिरर एकदम प्लेन. फिर
फिर इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह से कर्व कर दिया। कर्व मतलब इस तरह से कोई लाइट आएगा, क्या आएगा, रिटर्न। अगर इस तरह से कोई लाइट आएगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एकदम से पलट दिया। ओके, इसको इस तरह से टेढ़ा कर दिया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर की तरफ है। ओके, एकदम से इसका उल्टा है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दीज मिरर आर कर्व्ड इनवर्ड। ओके, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, और इनवर्ड होगा। ठीक है, ये कर्व किधर, इनवर्ड। तो जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या कर्व इनवर्ड होगा, उससे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। यस, व्हाट इज दैट, इज द कॉनकेव। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड होगा, उससे हम कहेंगे, ये जो इसका क्या है, कर्व आउटवर्ड है, कर्व आउटवर्ड, तो इसको कहेंगे हम आउटवर्ड। इसको कहेंगे हम, जो कर्व क्या मिरर था, इसको कहेंगे हम कन्वेक्स। तो जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो ये है आपका, ये जो है आपका प्लेन मिरर। ओके, यहाँ पे हमने 3 तरह के मिरर पाले। एक था प्लेन मिरर, जो एकदम सा प्लेन होगा, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड होगा, उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कर्व आउटवर्ड होगा, उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसी तरह के हम 3 तरह के मिरर, ये प्लेन मिरर अलग है, और जब स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो 2 तरह के मिरर आएगा, एक है कॉनकेव मिरर, एक है कन्वेक्स मिरर। मान लिया सब, ठीक से ना? ठीक है, अगर फिर इसको हम डिटेली स्टडी करते हैं, इसका और अदर पोर्शन क्या कुछ होता है। ठीक है, मान लीजिए कॉनकेव बोलता हूँ, ये कॉनकेव मिरर होगा, इसका जो मेटल प्लेटिंग होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो इनसाइड जो बनेगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, इसके सेंटर पे मैंने एक रे पास करता हूँ, इसको कहा जाता है ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, इस तरह का एक सर्कल का डायमीटर होता है, उस तरह यहाँ पे जो सेंटर जो लाइन पास करता है, इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, इसी तरह मिरर जो सेंटर पे पास करेगा उसे कहेंगे ऑप्टिकल। इसको फिर से मैं एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक मिरर बना देता हूँ। ठीक है, इसका इनसाइड साइड में जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब इसका अंदर की साइड जो सिल्वर का मेटल दिया हुआ है, मतलब ये इसका बाहर का साइड हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर बनेगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका कहलाएगा तो ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया उसका ऑप्टिकल एक्सिस। फिर इसमें और तो कुछ पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, एक पॉइंट होता है जिसको हम सी कहते हैं, सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर फिर आता है एफ, आता है एफ का मतलब होता है फोकस। ठीक है, ये आप हायर क्लास में जब जाएंगे तब उसमें पढ़ेंगे। नॉर्मल जो रे डायग्राम होगा इसको कहते हैं रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का रे डायग्राम करते हैं। ये हो गया आपका क्या, और ये अंदर की तरफ हुआ है, इसको हम कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये बाहर की तरफ आया है, इसको कहेंगे हम कॉन्वेक्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहचाने कि कौन कॉनकेव है और कौन कॉन्वेक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कौन सी मिरर में किस तरीके का इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव, पहले स्टडी करते हैं कॉनकेव मिरर में जो इमेज प्रोड्यूस होता है वो किस तरीके का इमेज प्रोड्यूस होता है।
इसको हम नेचुरल पहले जो एक्सपेरिमेंट लेंगे, ठीक है, इसको हम कभी कॉन्केव मिरर का कॉमन एग्जांपल क्या, आपने कभी चम्मच देखा होगा, चम्मच का जो जिस तरह का खाने का पोर्शन होता है, सपोज मान लीजिए चम्मच है, चम्मच है तो इस तरह का होता है, ये जो कॉन्केव इसका जो ये जो सी पोर्शन का जो पार्ट है ये क्या होगा, राइट, कॉन्केव मिरर होगा। आप चाहे तो कभी कभार जब चम्मच, जब स्टील का चम्मच बना हुआ है वहीं पे भी आप अपना इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लेते हैं कॉन्केव मिरर तो उसमें किस तरीके का इमेज बनेगा, अगर आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक मैं कैंडल रख लेता हूँ, कैंडल रख लूँगा और यहाँ पे मैं कॉन्केव मिरर रख लूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्केव मिरर रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, एक स्क्रीन रख लूँगा, पेपर शीट है स्क्रीन, ये है स्क्रीन, यहाँ पे हो गया होगा कॉन्केव मिरर, ये हो गया होगा, ठीक है। जब ये कैंडल से लाइट निकल कर इधर आएगा तो क्या होगा, इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज को हम स्क्रीन में फ्लड कर सकते हैं। ये स्क्रीन इस जो ये बनेगा वो कभी इस तरह से बना, ठीक है, देखोगे तो जो इमेज बनेगा इसका, ये जो फ्लैम बना हुआ है फ्लैम का एकदम से उल्टा है। तो अभी जो कॉन्केव मिरर में जो इमेज बनता है, तो द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे यहीं से एक रे गया, क्या हुआ, इधर रिटर्न किया, अब यहाँ से रे गया, फिर यहाँ से रिटर्न किया, ठीक है। तो ये इमेज जहाँ पे दो रे पॉइंट करते हैं, दो रे जहाँ पे मीट करते हैं तो वहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, ये जब ए बी एक ऑब्जेक्ट है तो ये बनेगा एडेक्स बीडेक्स जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मिरर का ये सेम साइड है, इसका इमेज भी बना क्या, उसी का सेम साइड पे इसका इमेज बना। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहले हमारा रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हुआ कि दो रे एक जगह पे सही, एक्चुअली यहाँ पे एक रे आया रिटर्न किया, एक आया इधर आया, तो ये दोनों रे एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे जब मीट करेंगे तब जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज होगा। अगर वर्चुअल इमेज क्या होगा, इसको हम मान लेंगे नहीं एक्चुअली वो मीट नहीं करेंगे, पर हम सोचेंगे कि नहीं इसको जब एक्सटेंड किया जाएगा तो यहीं पे मीट करेगा, ये सोचने वाले में क्या होगा, वहाँ पे एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होगा। सपोज उसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये सेम डायग्राम होगा, अगर ये हो गया आपका एफ, ये हो गया सी, तो एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे, मिरर के एकदम से पास में जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा कॉन्केव मिरर के, तो क्या करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये दोनों रे जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तो इंसिडेंट रे हो गए, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगे, ठीक है। जो जाएगा वो इंसिडेंट रे होगा, जो रिटर्न आएगा वो रिफ्लेक्टेड होगा। सपोज ये I1 है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे R1 हो गया, फिर जब ये इंसिडेंट रे 2 हो गया तो इसका रिफ्लेक्टेड रे भी R2 हो गया। यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे सही एक जगह पे मीट कर रहे हैं, पर ये जो केस है यहाँ पे जो इंसिडेंट रे 1 इंसिडेंट रे 2, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे 1 रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दोनों आपस में कहीं मीट करेंगे क्या, नहीं, ये आगे कहीं नहीं मीट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, सपोज इसको हम पीछे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, पीछे जब एक्सटेंड करेंगे एक जगह पे ये लोग मीट करता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे ये जो रे यहाँ पे मीट की, ये दोनों रे एक्चुअली मीट किए क्या, नहीं, ये दोनों एक्चुअली नहीं मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो इमेज बनेगा इसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज, और ये हो गया आपका रियल इमेज, ओके, ये आपका
रियल इमेज और ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज। ये डायग्राम आपका बुक में नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। बस आपको इतना लिख देना है कि जो कनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा और क्या होगा वो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब क्या, अगर ऑब्जेक्ट इधर एरो मार्क इधर देख रहे हो, यहाँ पे एरो मार्क मैंने कहाँ लगाया है, नीचे की ओर लगाया है। तो इधर जब ऐसा होगा तो जब इसका इमेज बनेगा तो एकदम से उसका उल्टा हो जाएगा। ये उसका सर है, इसका पाँव मतलब इसका सर नीचे हो जाएगा, पाँव ऊपर हो जाएगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। और क्या होगा, वो जिस तरह ऑब्जेक्ट होगा उसका सेम साइड में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर है और जो इसका इमेज बना उसका अलग साइड से होगा। ये जो एक्सेप्शन है ज़्यादा था, जब ये बहुत नज़दीक आ जाएगा तभी इस तरह का इमेज बनेगा, नहीं तो हर वक्त क्या होगा, इसका रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर ऑब्जेक्ट एंड द डिमिनिश्ड एंड लार्ज और द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज का साइज कभी छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी एकदम छोटा हो जाएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो यहाँ ले आऊँगा तो अलग तरीके की इमेज बनेगा, तो ज़्यादा दूर ले जाऊँगा तो अलग तरीके की इमेज बनेगा। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इसका इमेज का साइज बदलता रहेगा। लेकिन प्लेन मिरर में क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उसका इमेज भी उतना ही बड़ा रहेगा, वो जितना नज़दीक आ जाए जितना दूर चले जाए, ठीक है। पर यहाँ पे कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से उसका इमेज का साइज बदलता रहेगा, ठीक है। When the object is placed very close to the mirror, image often is virtual, erect, and large in size. The image can be obtained on the screen. Okay. यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट एकदम से पास ले आया तो यहाँ पे रियल इमेज बना क्या, नहीं, कौन सा इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया। तो क्या ऑब्जेक्ट इतना छोटा है लेकिन इसका इमेज कितना बन गया, एकदम से बड़ा बन गया। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को बहुत पास लाएंगे तो तब ये रियल इमेज नहीं प्रोड्यूस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के बहुत पास आ जाता है तब उसका इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। और यहाँ पे इन्वर्टेड है क्या, नहीं, एकदम से ऑब्जेक्ट इस तरह से है, ऑब्जेक्ट इधर इसका एरो मार्क मतलब इसका भी एरो मार्क इधर आ गया, तो ये जिस तरह का है वो इस तरह का सेल्स जो अगर सीधे सीधे आ गया तो उसका हम बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है। और जब उल्टा आ गया तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड। तो जब बहुत पास आएगा तो उसका इन्वर्टेड भी नहीं बनेगा, उसका क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा और जो साइज है एकदम से बड़ा बनेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा कनकेव का ये सारी बात, ठीक है। अभी डिस्कशन करते हैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर। ये सब बातें क्या होगी, कनकेव मिरर की होगी। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है ये है, तो ये जो अंदर पास किया वो हो गया आपका ऑप्टिकल एक्सिस सन, बहुत फिर है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इधर है, मतलब इसका भी फोकस बनेगा इधर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है। तो इसकी और किस तरीके की इमेज बनता है देखते हैं। So student, now discuss about the convex mirror. We have discussed everything and what type of image that can be formed and what are the nature of the image that will be formed by the concave mirror. We have successfully discussed all about this. Now time to discuss about the convex mirror. So first thing, how can we identify this is a convex mirror? Okay, so this reflecting surface of the mirror which is bulging outward. Okay, suppose this is reflecting surface. If the reflecting surface is bulging outward, then we have cleared that this is a convex mirror. Okay, so now I want to draw a ray diagram regarding to the convex mirror. Here I have placed a pendant in front of the convex mirror. Here this is your object. Okay, this is the okay. Here I have decided to use only two rays because to find a object at least two rays are necessary. Okay, more than two rays also can be formed a image, but at least two rays are necessary to form the image. So I have decided to immerse two rays from here. So here
I have passed the first incident ray and strike the surface of the convex mirror and it becomes diverged. Okay. So here what will happen? When I put a ray in case of convex mirror, it sends it to inward. But okay, because this mirror is called the converging mirror. Converging mirror. Okay, here the ray is moved outward because this is a diverging mirror. I have told that parallel beam, converging beam, and diverging beam. Okay, the mirror which allow the ray from different direction to meet at a point, they are called the converging. And the mirror which allow to go away from each another, they are called the diverging. Here the ray will be diverged in such a very fast. So this is a diverging mirror. Okay, and I have sent another ray just like here. Okay, so this is the your incident ray 1 and incident ray 2. Okay, this is reflecting ray 1 and this becomes just move like here. Okay, if I extend this ray, okay, if this does not correct, it will be written just like here. Okay, so if I extend this ray and extend this ray, then they will meet at this point. Okay, here the image of this candle will be formed just like here. This is small. Okay, so here the image will be. So this is the image and this is the object. Here the image, the ray actually meet or not? यहाँ पे जो रे दोनों रे गए थे वो एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रहे हैं क्या? नहीं, इसको हम जब एक्सटेंड करते हैं, जब मान लो सपोज ये अगर इसके अंदर जाता तो कहाँ मिलता, ये जब हम इमेजिन करके इसको जब एक्सटेंड कर रहे हैं, डॉटेड लाइन में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे ये लोग मीट कर सकते थे. ओके, एक्चुअली मीट कर सकते थे जब ये अंदर जाते तो यहाँ पे इसको हम इमेजिन करने के बाद यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये कौन सा इमेज बनेगा? ये बनेगा वर्चुअल इमेज. वो रियल में मीट करते तो रियल इमेज बनते, ये वर्चुअल हम इमेजिन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा. ठीक है, अगर यहाँ पे साइज कितना हो गया? एकदम से छोटा हो गया. फिर ठीक है, और क्या फिर इधर सीधे था, यहाँ पे भी इमेज सीधा. तो ध्यान रखिएगा, जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट ही बनेगा. ठीक है, यहाँ पे इमेज क्या बन रहा है? वर्चुअल एंड. ठीक है, और जब यहाँ पे क्या होगा? रियल बनेगा तो उसका इन्वर्टेड बनेगा. बहुत रेयर कंडीशन में आपका जो इरेक्ट इमेज बनेगा. ठीक है, तो जो भी इमेज बनेगा कहाँ पे? आपका कन्वेक्स मिरर पे, वो वर्चुअल होने के कारण ये किसी स्क्रीन पे आप प्लॉट नहीं कर सकते. जो रियल इमेज होगा उसे ही आप किसी पेपर या किसी वॉल या किसी तरह का स्क्रीन पे प्लॉट कर सकते हैं. जितने भी वर्चुअल इमेज बनेंगे वो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में बनेंगे, इसी के कारण, और मिरर के अंदर बनेंगे तो आप इसको किसी भी स्क्रीन पे प्लॉट नहीं कर सकते. अगर जिसका इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनेगा उसको आप किसी भी स्क्रीन पे प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, तो द इमेज formed by convex mirror is always virtual, erect and diminished. देखो यहाँ पे क्या कहा गया? virtual, erect and diminished. diminished का मतलब क्या है? बहुत छोटा. ठीक है, तो आप जब भी वर्चुअल इमेज का, वर्चुअल जो कन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरह का बनेगा? वर्चुअल, मतलब कभी रियल में मीट नहीं करेंगे, जब उसको एक्सटेंड करेंगे तभी मीट करेगा. और क्या होगा? इरेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इस तरह सीधा है, उसका इमेज भी सीधा बनेगा. फिर क्या? डिमिनिश, मतलब बहुत छोटे आकार का होगा. ये है प्रॉपर्टी जो कि इमेज फॉर्म होगा कन्वेक्स मिरर में. फिर क्या होगा? दिस इमेज इज वर्चुअल हैंस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन. ये वर्चुअल होने के कारण किसी भी स्क्रीन पे हम इसको प्लॉट नहीं कर सकते. ठीक है, इतना हो गया. आप डाउट क्लियर आपका कि कन्वेक्स मिरर में किस तरह का होता है, कनकेव मिरर में किस तरह का होता है. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट अनदर थिंग दैट यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. ये किस दोनों में?
स्फेरिकल मिरर के अंदर आते हैं। स्फेरिकल मिरर दो थे, कॉनकेव और कन्वेक्स। नाउ डिस्कस अबाउट व्हाट आर देयर यूजेस इन आवर डेली लाइफ। ओके, इसको हम किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज करते हैं। फर्स्ट कॉनकेव मिरर के बारे में देखते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आपने कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो वहाँ पे उसका एक छोटा सा ग्लास तरीके का दिखता है जो आपकी टीथ की जब कैविटी होता है उसको देखने के लिए यूज़ करता है। तो वहाँ पे कौन सा मिरर यूज होता है, वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, जो आपका सेविंग मिरर होता है, तो सेविंग मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर से बना हुआ होता है। ठीक है, जो सोलर कुकर बनता है, सोलर कुकर में भी ये कॉनकेव मिरर यूज होता है। फिर क्या होगा, ये टेलीस्कोप में यूज होता है। तो आपका टर्च वगैरह होता है, टर्च के जो हेडलाइट्स होते हैं, कार के जो हेडलाइट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी आपका कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है, जब व्हीकल का जो आपका गाड़ी में जो लगता है, जो पीछे का व्यू देखने के लिए जो एक मिरर लगता है, अब बाइक हो गया, कार का जो पीछे का व्यू देखने के लिए, आप जो ड्राइव कर रहे हैं तो पीछे क्या गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, जो मिरर यूज होता है वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर। क्यों वहाँ पे कन्वेक्स मिरर होता है, अगर हम वहाँ पर कॉनकेव मिरर तो गाड़ी सीधी आ रही है तो उसका इमेज टेढ़ा नजर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, जो सीधा होता है। फिर क्या होता है, ये बहुत सारे लॉन्ग जो बहुत सारे एरिया का एक छोटे से व्यू हमें दे देता है। तो वहाँ पे हमें कन्वेक्स मिरर ही यूज करना चाहिए। और क्या होता है, इट इज यूज्ड इन शॉप मॉल फॉर द सर्विलेंस, सर्विलेंस करने के लिए, चेक करने के लिए, बहुत सारे इलाके को इजीली देखने के लिए मॉल्स और दुकान वगैरह में भी जो कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ठीक है, और इसमें फिर कॉमन क्या है, जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा रियल इमेज यूज करता है, ताकि जब उसके पास, जब मिरर के पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तभी इसका वर्चुअल इमेज आएगा। इसे छोड़कर हर वक्त ये क्या करेगा, रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा। रियल इमेज होगा, फिर क्या होगा, और कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है, कभी इक्वल हो सकता है। ठीक है, और फिर इसका जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट के तरफ उसका इमेज जो आएगा वो एकदम उल्टा आएगा। देखिए, हमने जो कन्वेक्स में बात की क्या, वो हमेशा वर्चुअल आएगा, इरेक्ट आएगा और डिमिनिश्ड आएगा। ये हो गया कंपैरिजन इन बिटवीन द कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर comparison in between the real image and virtual image. Okay, I hope you have understand the ray diagram of convex and concave mirror, and also what type of image will be formed in these types of mirror. Okay, so here I have also clear discussion about the spherical mirror. Now take a comparison in between the real image and virtual image. ठीक है, so there are two types of image formed, that is real image and virtual image. तो what are there in cases of real? Okay, तो जो रियल इमेज होता है वो हम किसी स्क्रीन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, प्लॉट ऑन ए स्क्रीन। जो रियल इमेज होता है वो हम किसी स्क्रीन पे उसको प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे वर्चुअल इमेज पे इसका किसी भी स्क्रीन पे हम इसको प्लॉट नहीं करते, क्योंकि ये मिरर के अंदर ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे होता है, इसलिए हम इसको स्क्रीन से आसानी से जो प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट होगा आपका, इट इज फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट टू रेज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ओके, ये जो कोई भी इमेज फॉर्म होने के लिए एटलीस्ट टू रेज चाहिए। अगर वो टू रेज क्या होगा, रियली मीट कर रहे हैं। ठीक है, रियली अगर वो आपस में रियली मीट कर रहे हैं तब जो इमेज बनेगा वो इमेज कहलाएगा रियल इमेज। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर दो रे मीट कर रहे हैं पर वो रियली मीट ना करके हम जब उसको एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो जब रियली मीट नहीं करेंगे, वो जब रियली मीट नहीं करेंगे तब जो इमेज बनेगा वो कहलाएगा आपका वर्चुअल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्या, उसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। रियल इमेज का प्रॉपर्टी किस तरह का होता है। रियल इमेज जो होगा, जो प्लेन मिरर में देखेंगे तो उसका सेम ही होगा, सेम साइज का होगा।
अगर वो कभी क्या होगा एनलार्ज हो सकता है, जो कनकेव मिरर हम यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट से बड़ा भी इमेज बन सकता है, कभी इक्वल भी इमेज बन सकता है। फिर क्या होगा, जो कन्वेक्स मिरर होगा जब कभी फॉर्म करता है तो एकदम से छोटा होगा, और कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है। और जब कन्वेक्स मिरर जो वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो वर्चुअल इमेज क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इसका साइज बड़ा या छोटा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हमने मिरर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अभी डिस्कशन करते हैं लेंस के बारे में, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, अगर आपने कनकेव मिरर में एक ही कर्व सरफेस था, फिर कन्वेक्स मिरर में इस तरह का सरफेस था, जो लेंस बनेगा उसका क्या होगा, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे। लेंस इज ए पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स विथ टू कर्व सरफेस, ठीक है, विथ कर्व सरफेस। इसका जो क्या होगा, दो तरीके के कर्व सरफेस रहेगा। और लेंस में क्या होता है, दो तरीके के लेंस होता है, ठीक है। एक होता है कनकेव लेंस, जिस तरह आप मिरर में पढ़ा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसी तरह हम बात करेंगे क्या, सपोज मान लो कि एक तरह का लेंस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे और अलग तरह के लेंस किधर होंगे, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के लेंस होंगे, एक को कहेंगे हम कनकेव लेंस और दूसरे को कहेंगे हम कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो लेंस कैसे बने, अगर दो तरीके के मिरर को हम जोड़ देते हैं तो मेनली हो जाता है क्या, वो एक लेंस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, लाइट का क्या जो रिफ्रैक्शन होगा, तो दो अलग बात, रिफ्लेक्शन और होता है क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक होना, रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम को घुस जाना, ठीक है। और जो मिरर का दोनों तरफ साइड का जो बल्जिंग, अगर उसका ऊपर और नीचे नैरो होगा और बीच में ब्रॉडर होगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, जिसका नीचे जो बीच का साइड स्मॉलर होगा, थिनर होगा और टू एंड्स ब्रॉडर होगा, उसको कहेंगे हम कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आसान बात है। और ये क्या करता है, जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस रे को एक दूसरे से बहुत दूर कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई रे, दो पैरेलल रे है, जब कन्वेक्स लेंस से टकराए तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसको पार हो जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से दोनों को एक दूसरे से दूर भेज देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एक दूसरे से दूर जा रहा है, मतलब ये डाइवर्ज हो रहा है। तो कन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी। जब कनकेव लेंस की बात करेंगे, यहाँ पे दो रे आए तो क्या करेगा, उन दोनों को लेकर कहेंगे मीट करेगा और दोनों को आपस में मीट करने के लिए भेजेगा, तो ये क्या कहलाएगा, कन्वर्जिंग। समझ में आ गया, कनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और जो कन्वेक्स लेंस होता है उसे डाइवर्जिंग लेंस। एक मिनट, सेकंड थोड़ा गलत बोल दिया कि अगर जिसका जो मिडिल पोर्शन बल्ज होगा, यहाँ पे हमने देखा था कि जो कन्वेक्स मिरर था वो इस तरह, जिसका बाहर साइड से जो इस तरह बल्जिंग साइड रहेगा उसको हम कन्वेक्स बोलते थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जिसका जो मिडिल पोर्शन ब्रॉडर होगा और नीचे दोनों स्मॉलर होगा, उसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसको कन्वेक्स लेंस कहेंगे। और जो कनकेव लेंस था वो कनकेव लेंस कैसे, कनकेव मिरर कैसा था, इसका बाहर का जो अंदर साइड क्या था, अगर यहाँ पे दोनों कनकेव लेंस को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, जिसका मिडिल पोर्शन की और टू एंड में ब्रॉडर होगा तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसे थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, तो ये हो गया कनकेव लेंस, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ओके। तो अब देखते हैं कि कौन सा लेंस में किस तरह का इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करना है, बस रिवर्स कर देना है। क्या कन्वेक्स लेंस में क्या होता था, वर्चुअल इमेज आता था, कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज आता था। तो यहाँ पे रिलेट कर देना कनकेव लेंस, कि कनकेव लेंस में क्या होगा,
आपका रियल जो कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस, ये जो है इसको थोड़ा उल्टा देना, तो आपका जो जिस तरह का इमेज बन रहा है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं द इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स लेंस इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो कन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज बनेगा, आपका रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो क्या हो रहा था, आप कन्वेक्स लेंस की जब बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस में किस तरह का इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, जो कि किस भी बन रहा था, ये किसका कैरेक्टर है, ये किसका कैरेक्टर है आपका कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर में जिस तरह का इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस में उसी तरीके का इमेज बनेगा। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का मतलब है कॉनकेव मिरर का मतलब, ठीक है, उसको चेंज करना। फिर वहां पे भी यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस वहां पे किस तरह का इमेज बन रहा है, वर्चुअल एरेड एंड इमेज, जो कि हमने देखा है कॉन्वेक्स मिरर के बन रहा है। कॉन्वेक्स मिरर में जिस तरह का इमेज का प्रॉपर्टी होगा वो सारा कहाँ पे आ जाएगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी है उसे आराम से आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं यूजेस कहाँ पे होते हैं। तो जो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये वाला जो लेंस है इसको हम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरा वगैरह में इसका यूज होता है। फिर देखते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट लॉन्ग साइटनेस। जो लॉन्ग साइटनेस होता है, लॉन्ग साइटनेस डिजीज को आई का जो डिजीज होता है उसको करेक्शन करने में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। फिर क्या कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, शॉर्ट साइटनेस। ओके, ये आपका यूज होता है लॉन्ग साइटनेस के लिए, लॉन्ग साइटनेस को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर है कॉनकेव वो है शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस का डिजीज जो दूर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर देखा कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरा में यूज करते हैं। और यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है उसको हम यूज करते हैं जो डोर स्पाई होल। डोर स्पाई होल अगर आपने देखा होगा कि कभी जो टावर्स वगैरह जो खिड़की में दरवाजा होता है वहाँ पे सटकने के पोल किया जाता है, वो पोल पे एक कांच का चीज, एक कांच का लेंस रखा जाता है ताकि वो जो घर के अंदर जो है वो पहले देख ले कि बाहर कौन आ रहा है, बाद में वो खिड़की को। ठीक है, वहाँ पे ये जो डोर स्पाई होल होता है वहाँ पे किसका यूज करता है, डाइवर्जिंग लेंस। मतलब ये एक साथ में बहुत सारे इलाका का एक व्यू ले सकता है, इसीलिए डोर स्पाई होल में जो आपका कॉनकेव मिरर का कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ये हो गया आपका मिरर लेंस और उसका सारा यूजेस और उनका किस तरह का इमेज फॉर्म होता है। ओके, अब देखते हैं लाइट्स, कलर्स ऑफ लाइट। ओके, तो स्टूडेंट आपने कभी कभार जब बारिश हो जाए, जब डे के टाइम में बारिश होगा और सन वेस्ट के डायरेक्शन में होगी तो उस टाइम आप जो स्काई में एक रेनबो देख सकते। इंद्रधनु कभी कभार देखा होगा, इंद्रधनु में कितना कलर होता है, 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। वो कलर्स कहाँ से आते हैं, वो रेनबो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है। हम सबके माइंड में बचपन से हम देख रहे हैं तो रेनबो, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है और ये 7 कलर से क्यों होता है, ये 7 कलर कहाँ से होता है। ठीक है, इन सारे सवाल का जवाब सर आइजैक न्यूटन ने ढूंढ लिया था। सर आइजैक न्यूटन पहला जो फिजिसिस्ट थे वो क्या बताया कि अगर ये जो सनलाइट हम देख रहे हैं, इस सनलाइट नॉर्मल से कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये जो व्हाइट कलर वाला सनलाइट है ये व्हाइट कलर का नहीं है, इसमें क्या है, 7 कलर मिक्स हुआ है। इस 7 कलर को हम क्या कहते हैं, विबगियर कहते हैं, या हिंदी में या उड़िया में जब कहते हैं बाघनी सहनाला ये बोलते हैं। तो क्या उन्होंने क्या किया, पहले प्रिज्म लिए, ये क्या है प्रिज्म है, वहाँ पे छोटा सा जो सनलाइट का बीम गिरा तो बाद में उन्होंने देखा कि ये जो सिंगल व्हाइट कलर का लाइट है ये 7 डिफरेंट रंगों में बट रहा है। ठीक है, हर एक कलर का छोटा बीम निकल रहा है और यहाँ पे 7 तरह के रंग निकल रहा है। तो वहाँ से वो ये जो व्हाइट कलर वाला सनलाइट जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका जो सनलाइट है क्योंकि व्हाइट कलर में दिखता है, ये असल में व्हाइट कलर नहीं है, ये 7 रंगों का मिलन है, इसलिए 7 डिफरेंट कलर का मिक्सचर है। ये 7 डिफरेंट कलर क्या है,
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसी तरह से जब आप 7 कलर को, फिर उन्होंने क्या किया, यार ये सभी 7 कलर एक तरह के होते हैं, फिर उन्होंने क्या किया, ये 7 कलर को फिर एक बार उन्होंने प्रिज्म के डाल दिया, ठीक है। जो सनलाइट से निकला हुआ साथ विपरीत कलर निकलेगा, उसको उन्होंने क्या किया, फिर से एक प्रिज्म में डाल दिया। तो उन्होंने फिर देखा कि वो एक सिंगल व्हाइट कलर की लाइट निकल रहा है। मतलब ये 7 कलर जब मिल जाते हैं तो व्हाइट कलर हो जाता है। व्हाइट कलर जब एक प्रिज्म में गिराते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर हो जाता है, ठीक है। ये जो है, ये जो जिस प्रॉपर्टी के कारण ये लाइट 7 कलर में, जो 7 डिफरेंट कलर में बढ़ जाता है, इसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ, ठीक है। आज मैंने 3 बात, रिफ्लेक्शन बताया, रिफ्रैक्शन बताया, ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन का मतलब देखो, ये अगर एक लाइट गया किसी सरफेस से टकराया, उधर रिटर्न चला आया, तो ये हो गया आपका क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर एक चीज ऐसा, अगर लाइट इसके अंदर से पार होकर जा रहा है, तो ये हो गया आपका क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन। अगर एक कलर की लाइट गिरा, लाइट अंदर जाता है और 7 कलर डिफरेंट लाइट आ जाता है, तो उसको कहेंगे हम डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्पर्सन का कुछ इफेक्ट आपका हो गया रेनबो फॉर्मेशन। फिर आप देखते हैं कि लाइट जो ट्विंकल करता है, जो स्टार वगैरह ट्विंकल करते हैं, ये भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी था जो सनलाइट जो क्या है 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट होता है, तो उन्होंने फिर रिवर्स प्रूव करने क्या चाहा कि ये अगर 7 डिफरेंट कलर एक साथ मिल जाएंगे तो एकदम व्हाइट दिखेगा। ये प्रूफ करने के लिए सारा एजेंट न्यूटन ने क्या किया, एक डिस्क लिया, कहीं वो मेटल का हो या कार्डबोर्ड था, फिर उसमें उस डिस्क को उन्होंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, और जो 7 कलर थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर को उसको पेंट कर दिया एक हिस्से में। फिर जब उसको तेजी से घुमाए तो क्या हुआ, जो डिस्क का कलर था एकदम से व्हाइट नजर आया। ओके, जो लाइट के प्रॉपर्टी को समझाने के लिए न्यूटन ने जो डिस्क यूज किया था, उसको क्या कहते हैं, न्यूटन्स कलर डिस्क। ओके, आई होप ये सारी बातें आपको सही तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अच्छी तरीके से बार बार वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। जब तक ना समझे, हर एक चीज़ आपका हायर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपका आउट ऑफ सिलेबस से बहुत सारी चीज़ समझाया है, तो सही तरीके से वीडियो देखना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।